Let's start with next question. Question number 14th. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance. Remember this word, maximum. Maximum horizontal distance मतलब R max. और आपको पता है R max is U square by G. और आपको बोला है a cricketer can throw a ball to a maximum distance, horizontal distance of 100 meter. मतलब U square by G आपको दिया है 100. With the same effort मतलब with the same speed, he throws the ball vertically upwards. तो पहले उसने जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया था, अब वो उसी स्पीड से उसको एग्जैक्टली सीधा वर्टिकली ऊपर फेंक रहा है, राइट? सो इट इज द केस दैट यू नो, एक दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन and with the same speed, if I throw directly up with the same effort मतलब with the same speed, तो आगे आपको पूछा है with the same effort he throws the ball vertically up, the maximum height attained by the ball, तो कितना maximum height होगा? That is what they are asking you. Simple question है, बहुत simple है. तो first of all, maximum height equation पता हो नहीं पता हो doesn't matter. Do you know equation of kinematics? Sufficient. V square equal to U square plus 2as. Maximum vertical height पे V होता है 0. So this is what you need to know. This is 0 equal to U square minus 2gh, where h is maximum vertical height. तो यहां से आपको मिल जाएगा U square by 2g equal to h. एग्जैक्टली हमारे पास ना U है ना G है, इसके लिए हमने यहां से U square by G फाइंड कर लिया. U square by G, तो h equal to 1 by 2. What is U square by G? 100. What is 100 by 2? 50. तो 50 मीटर. ऑप्शन नंबर D. Done. Next question. A body is projected at an angle of 30 degree to the horizontal with speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 second? Easy है. तो if you remember, ये आपका हो गया x axis, this is y, this is origin. तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में सेट करोगे आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो आपको इनिशियल स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू. दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज थीटा इज 30 आफ्टर 1.5 सेकेंड. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट जहां के कहीं भी होगा, वी डोंट नो रियली कि वो यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि कहाँ है, वी डोंट नो. जहां भी होगा, तो इन दैट केस यू नो UH तो चेंज होता नहीं है, right? And of course, you know this is UY. In this case, it is VY at some later time. UY is initial, VY is final. तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपको एंगल निकालना है तो हमेशा tan. और आपको ये भी याद होगा कि tan थीटा नहीं, थीटा तो यहाँ पे है, tan अल्फा. तो if you remember tan alpha, VY by VX. Y component upon X component, always. It is always Y component upon X component. अभी भी जिनको नहीं समझा, no issues, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is alpha. This angle is alpha, right? आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? Think. What will you do? कैसे फाइंड करोगे? How will you find it out? What is the angle with the horizontal after 1.5 second? तो ये एंगल पूछा है. What will you do? कैसे फाइंड करोगे एंगल? This is alpha. आगे this is alpha. This is 90 minus alpha. This is ये 90 minus alpha बोल दिया, तो ये कितना हो गया? Alpha. Correct? पक्का? What is tan theta by definition?
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यू नीड टू रीथिंक, थोड़ा सा सोचो, और ये छोटा सा असाइनमेंट तो देना भी चाहिए। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, हमने ये ऑलरेडी, अगर याद नहीं है तो याद दिला दूंगा मैं, हमने ऑलरेडी ये किया है कि मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल के मोशन में कहीं पे भी हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एंगल अल्फा, यू ऑलवेज हैव टू टेक y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसे निकालूंगा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना इज सिंपल, इट इज v इक्वल टू u प्लस at, मतलब uy प्लस ay t, और ये आएगा ux प्लस ax t, करेक्ट। uy is u sin theta and ay is minus gt upon ux is u cos theta, ax is 0. Do you know what is u? 30. Do you know what is theta? 30. Do you know what is g? 10. Do you know what is time t? 1.5. तो ये आपको मिल जाएगा 30 sin 30 माइनस 10 इंटू 1.5 अपॉन नीचे जो भी हो, ठीक है, 30 cos 30. What is sin 30? Half. What is 10 into 1.5? 15 upon, as I told you, जो कुछ भी हो 30 root 3 by 2. I don't care, क्योंकि ऊपर 15 माइनस 15 0, तो tan की वैल्यू 0 कब आती है? 0 पे आती है। तो tan अल्फा 0 मतलब अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन ही खत्म कर दिया, इट इज बैक टू ग्राउंड। सो ऑप्शन नंबर ए आफ्टर 1.5 सेकेंड। और एक तरीका हो सकता है, लेट अस ट्राई, ये तो ठीक था, दिस इज करेक्ट अप्रोच, गलत कुछ नहीं है, बट देयर इज वन मोर अप्रोच, क्योंकि 0 आ गया तो आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड पे वापस पहुंच गया, मतलब उसने फ्लाइट खत्म कर लिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लो। हाउ डू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट? uy स्क्वायर बाय टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाय g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g। डू यू नो व्हाट इज u? 30 sin हाफ g 10, कैंसल, करेक्ट। ये तो आ गया आपके पास कितना? 3, करेक्ट, राइट। तो फिर कैसे आप बोल सकते हो कि 0 है? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना आ रहा है आपका? 3 सेकेंड्स, गुड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड आ रहा है, मैक्सिमम, हाँ, यस, गुड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 है और हमारे पास टाइम कितना दिया है? 1.5, मतलब पार्टिकल इज एग्जैक्टली हियर, एग्जैक्टली एट द टॉप, करेक्ट। एट द टॉप व्हाट इज vy? vy is 0, मतलब tan अल्फा खत्म। तो ऐसा भी कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, मैं वापस बताता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड। तो जो पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि अल्फा 0 मतलब मे बी इट इज एट द ग्राउंड, तो दैट इज नॉट द केस, वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा। तो वो स्टेटमेंट को डिलीट कर दो आपके मेमोरी में से। आइडिया इज हो सकता है, तो हमको तो आंसर मिल गया अल्फा 0, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। बट एक सेकंड मेथड भी सोचना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 3। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और वो दोनों इक्वल आते हैं, मतलब 1.5 सेकेंड इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम एंड देन, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट 3 है और गिवन टाइम कितना है? 1.5, मतलब पार्टिकल कहाँ है? मैक्सिमम हाइट पे है। मैक्सिमम हाइट पे vy क्या होता है? 0। तो tan अल्फा में vy 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, ये सारा कैलकुलेशन करने की जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं मेथड नंबर 2 लिख ही देता हूं, तो यू कैन से मेथड नंबर 2 यू कैन से
कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेते हैं, विच इज 2u sin theta by g. 2 into 30 into sin 30 is half and g is 10, that is equal to 3 seconds. That means but given time is कितना 1.5 second, that is half of time of flight. That means which means particle projectile मतलब is at maximum height, और पार्टिकल अगर मैक्सिमम हाइट पे है which means Vy equal to 0, और आपको पता है कि एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज tan alpha which is Vy by Vx which is 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ऐसा भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. During a projectile motion, if the maximum height equals horizontal range, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The path followed by a body projected along y-axis is given by y equal to root 3x minus 1 by 2 x square. अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए है, then the initial velocity of projectile will be x and v are in meters. तो initial velocity मतलब u, right? तो सबसे पहले u आपको पता होना चाहिए कि u is a vector quantity which is given by u x I cap plus u y j cap. तो इसके भी दो मेथड हैं, तो I'll tell you both of this again. So ux is u cos theta or uy is u sin theta. Good. Now so let us keep it little simple. ठीक है, तो ऐसा you remember, do you remember equation of projectile? याद है क्या? x tan theta minus g upon 2u square cos square theta x square. तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, एक गिवन इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो इफ यू कंपेयर यू गेट कंपेयरिंग 1 and 2, comparing equation number 1 and 2, what you get is tan theta equal to root 3, मतलब theta equal to 60 डिग्री. एक तो थीटा मिल गया 60 डिग्री. दूसरा यू कैन डायरेक्टली कंपेयर दिस टू ऑल्सो, है ना. हाफ इक्वल टू जी अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसल, तो u स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन cos स्क्वायर थीटा. जी की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 60, cos स्क्वायर 60 1/4, क्योंकि cos 60 हाफ है और उसका स्क्वायर 1/4 होगा, तो ये 4 ऊपर जाएगा मतलब 40, तो u स्क्वायर इज 40 मतलब बेसिकली इफ यू 2 रूट 10, तो u इक्वल टू 2 रूट 10, करेक्ट. दिस इज 2 रूट 10 है क्या? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओनली वन मेथड वी विल डिस्कस, तो ठीक है, इसी से फास्ट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज. अब यहां पे भी आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है y इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ पे भी दो मेथड हो सकते हैं. ऑफ कोर्स व्हिच वन इज डिफिकल्ट, वन इज इजी. मैं दोनों बता देता हूँ. In this case, we can go through both of this. So method number one में you start by writing down standard equation which is x tan theta minus g upon 2u square cos square theta x square, right? अब इसमें क्या होगा that you know in this case by comparing, आप पहले कंपेयर करो, आपको क्या चाहिए? रेंज. What is range?
range if you remember is u square sine 2 theta by g. It is u square sine 2 theta by g. अब यहाँ पे होगा क्या कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कंपेयरिंग आपको मिलेगा g अपॉन 2 u square cos square theta इक्वल टू 5/4, राइट? तो व्हाट यू विल गेट हियर इज, look at this, g upon 2 u square cos square theta equal to 5/4, राइट? यहां से g की वैल्यू 10 डालो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप थीटा की वैल्यू निकालो. इट्स लिटिल लेंदी, नॉट लिटिल बट अ लॉट लेंदी. तो ये था मेथड नंबर 1. मैंने बताया था कि मैं मेथड बताऊंगा, सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं बोलता, राइट? यस, बिकॉज यू शुड नॉट go for such methods and you should remember, आपको पता होना चाहिए कि हमने और एक इक्वेशन देखा था जिसमें y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r. तो इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में लाओ. कैसे? वेट, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या है? 1. तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा? क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? 16. बस 16 x कॉमन. तो 16 x कॉमन निकाल लिया तो पहला टर्म बन गया 1, राइट? तो 5/4 x स्क्वायर. आई नो, वेट, आई नो, जिनको कंफ्यूजन होता है उसके लिए बता रहा हूं. आपने 16x कॉमन निकाला, वहां पर 16x था क्या? नहीं. तो 16x कॉमन निकालने से पहले आपने ऐसा करना चाहिए, जिनको कंफ्यूजन होता है सिर्फ उनके लिए, 16x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर आप इसको निकाल लो कॉमन. कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में बचा 1 एंड सेकेंड टर्म में क्योंकि आपने न्यूमरेटर से कॉमन निकाला है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में आएगा 16x. उसमें से भी ये और ये हो जाएगा कैंसल, राइट? इज दिस क्लियर? यहां तक पक्का? गुड. तो अल्टीमेटली ये सारा सॉल्व करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज, नाउ यू कैन टेल मी, इफ आई टेक आउट 16x कॉमन तो 1 एंड हियर यू विल हैव 5/4x अपॉन 16. वेरी गुड. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये जो 5 न्यूमरेटर में है इस 5 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाओ. कर सकते हैं ना? सिर्फ न्यूमरेटर से इसको नीचे. यू कैन डू दिस बिकॉज यू नो 2 इज नथिंग बट 1/1/2. 2 ऊपर जाएगा. तो ये जो 5/4 इंटू 16 था मैंने लिख दिया 1/4 इंटू 16/5. ठीक है, चलेगा. अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कर लो कंपेयर. इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 यू सी दिस इज इक्वल टू r, right? So of course 16 into 4/5 is r. So by comparing equation number 2 and 3, so from equation number 2 and 3, r is 4 into 16/5. Correct? Pakka? How much is this? 16 4 64/5, 12.8. तो it is 128/10 मतलब 12.8 मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर डी. तो ऑलवेज रिमेंबर which equation to use where. Next question. The friction of air causes retardation equal to 1/10 of acceleration due to gravity. The time of flight will decrease by. पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इजी है. थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने की कोशिश की है. You see, आपको ये बोल रहे हैं कि the friction of air causes vertical retardation, right? What is retardation?
नेगेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/10। अब द टाइम ऑफ फ्लाइट विल डिक्रीज बाय हाउ मच? तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन इज 2u sin थीटा बाय g। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोला कि u की वैल्यू चेंज की या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज किया, नो, ओनली थिंग चेंजिंग विल इज g। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट, u कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/g। पहले केस में जब एयर का फ्रिक्शन नहीं था, when there was no air friction, तो t is proportional to only 1/g, मतलब t1 is proportional to 1/g। दूसरे केस में when there is air friction, और air friction क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा। नेट एक्सेलरेशन, इमेजिन g minus g by 10। वेट, मैं बताता हूं व्हाट दे आर सेइंग, थोड़ा सा गलत है, बट व्हाट दे आर सेइंग इज रिटार्डेशन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ थ्रो करता और एयर नहीं होता, इफ देयर वाज नो एयर फ्रिक्शन, तो यू राइट a इक्वल टू बेसिकली -g, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट? करेक्ट? यहां तक क्लियर? -g लिखते हो, लेकिन जब टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन होता है तो उसमें आ जाता है प्लस। दिस इज रिटार्डेशन। व्हाई रिटार्डेशन? द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। वेरी गुड। तो ये रिटार्डेशन ही है। अब एडिशनली सोचो, हमारे पास ये केस नंबर 1 था, और केस नंबर 2 में एक्स्ट्रा फ्रिक्शन आ रहा है थ्रू एयर, और एयर क्या कर रहा है? एयर भी रिटार्ड कर रहा है। एयर इज नॉट सपोर्टिंग बट ऑल्सो सप्रेसिंग। ay इक्वल टू -g क्यों लिखा था? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट था, और एडिशनली एयर भी सप्रेस कर रहा है, एयर भी उसको रिटार्ड कर रहा है। तो सेकेंड केस का एक्सेलरेशन, डोंट यू थिंक इट विल बी दिस -g by 10? तो एक तो पहले ग्रेविटी अपोज कर रहा है, ऊपर से फिर एयर भी रिटार्ड कर रहा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। द फ्रिक्शन ऑफ एयर कॉजेस वर्टिकल रिटार्डेशन। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन बोला होता तो यहां पे आता प्लस। वेट, ओके, घाई नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्लस ही आएगा। इट इज -g, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, प्लस g by 10, माइनस कॉमन निकाल लिया आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में g है, राइट? ये g सारा सब सॉल्व करने के बाद -g हो जाता है प्लस। मतलब ऑब्जेक्ट को जब आपने सिर्फ थ्रो किया था तो ay की वैल्यू थी -g, माइनस साइन क्या बताता है आपको? दैट्स इट। फिर यहाँ का जो बाहर का माइनस है वो क्या बताएगा? वेरी गुड। तो हियर यू कैन से a net in case 2, net acceleration in case 2 will be g upon g plus g by 10। I will repeat, सिर्फ पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, but it will be easy। T2 is proportional to 1 upon g plus g by 10। How much is the percentage decrease? मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में परसेंटेज डिक्रीज हमेशा याद रखना। परसेंटेज चेंज इज या तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 नॉर्मली। क्लियर? यहां तक क्लियर? I will repeat. I know there is some confusion, but ठीक है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो you will understand in a while। तो अब you just have to put values। T2 is proportional to, अगर आप ऊपर का proportional नहीं लिखते, पूरा लिखते 2u sin थीटा, वैसे भी वो कॉमन निकल के कैंसल होता, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं।
Now the thing is T2 is 1 upon G plus G by 10 minus 1 upon G upon 1 upon G into 100. This is G plus G by 10 कितना? 11 G by 10. 1 upon 11 G by 10 minus 1 upon G और ये 1 by G into 100. तो यहां से ये 10 ऊपर गया, 10 अपॉन 11, ये G बाहर निकाल लो, 1 by G माइनस ये तो कॉमन निकाल लिया अपॉन 1 by G, कैंसिल और कैंसिल इनटू 100. 10 by 11 minus 1, 10 minus 11 by 11 into 100. 1 by 11 with a negative sign into 100. नेगेटिव साइन का मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है. माइनस आ गया मतलब डिक्रीज. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 11 by 100, व्हाट इज 11 by 10. चलो और एक तरीके से पूछता हूँ, व्हाट इज 100 by 10. 10. डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होना मतलब ओवरऑल नंबर छोटा होना, तो आपका आंसर 10 से कम होगा. 9%. Okay, good. 1 minute. I will repeat this question and then we'll give you time to write down. पहले आइडिया समझ लो. Basics should be very clear. बेसिक ये है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 upon G. इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon G. जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पे 1 upon G लिखते हो, इट इज ऑलरेडी अज्यूम ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वहां पे ऑलरेडी रिटार्डेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में. अगर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वापस आता ही नहीं. ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ऊपर के ऊपर चले गया, वापस क्यों आएगा? इट इज बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन. और आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी सम वैल्यू, फिर मैक्सिमम हाइट पे फाइनल मतलब मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट 0 हुआ क्या? वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हुआ था क्या मैक्सिमम हाइट पे? यस. फाइनल वेलोसिटी 0 होना, इनिशियल नॉन जीरो होना मतलब क्या है? डी एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है. नहीं तो बढ़ते जाता ना तो ऑब्जेक्ट वापस क्यों आता? जाता अपना अपना, व्हाई इट विल कम बैक. नंबर 1. इज दिस क्लियर? तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज डेफिनेटली रिटार्डेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. लेकिन इन दिस केस जब आप एयर का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते हो तो रिटार्डेशन इज ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एडिशनली आपको बोला है, ये T1 है, एडिशनली आपको बोला है कि ग्रेविटी के साथ साथ और एयर भी रिटार्ड कर रहा है, तो दोनों रिटार्ड कर रहे हैं. दोनों रिटार्ड करेंगे तो G प्लस G by 10 होगा. सिंपल. अगर ग्रेविटी रिटार्ड कर रहा होता और एयर एक्सीलरेट कर रहा होता तो फिर क्या करते? दोनों को माइनस करते. इज दिस क्लियर? वन लास्ट अटेम्प्ट. सिंपल क्वेश्चन है. प्रोजेक्टाइल जब आपने प्रोजेक्ट कर दिया, थ्रो कर दिया, इज इट गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी? यस. मतलब देयर इज डी एक्सेलरेशन? यस. उसको क्या बोलते हो? रिटार्डेशन. उसका डायरेक्शन क्या था? वर्टिकल. वर्टिकल क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होता है इसके लिए. इज दिस क्लियर? राइट. अब एडिशनली अगर एयर भी रिटार्ड कर रहा है तो अब ज्यादा रिटार्डेशन है, जी से ज्यादा है, तो जी से ज्यादा तो प्लस ही लिखोगे ना, माइनस क्यों लिखेंगे हम लोग? इज दिस क्लियर? एडिशनल रिटार्डेशन इज देयर. अगर ऐसा बोला होता कि एयर इज सपोर्टिंग मतलब एयर इज एक्सेलरेटिंग तो फिर क्या लिखते? माइनस. दैट्स इट, डन. तो यू कैन नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A projectile is fired at 30 degree to the horizontal. The vertical component of its velocity is 80 meter per second. The time of flight is capital T. What will be the velocity of the projectile at T by 2? ये सिंपल है. You have projectile, उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी u क्या बताया आपको? गलत. एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली वर्टिकल कंपोनेंट मतलब आपको यू वाई बताया है, दैट इज यू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 80। तो u इक्वल टू 80 अपॉन साइन थीटा, उसमें थीटा आपको बता दिया 30, तो साइन 30 इज हाफ, तो 80 अपॉन हाफ दिस इज 160 मीटर पर सेकेंड। आगे बोला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t/2, हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? मैक्सिमम हाइट पे एक ही तो वेलोसिटी होता है। यस, सो एट मैक्सिमम हाइट यू हैव vx which is ux which is u cos थीटा। u फाइंड कर लिया आपने 160 cos ऑफ 30 √3/2, तो 160 √3/2 मतलब 80√3 है क्या? 80√3 ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज। हमने क्वेश्चन थ्योरी में सॉल्व कर लिया था। सेम रेंज मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर अ गिवन वेलोसिटी a projectile has same range r for two angles of projection if t1 and t2 are times of flight in the two cases then। तो याद होगा आपको जनरल इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, जनरल इट इज 2u sin थीटा बाय g। अगर पहला एंगल थीटा है तो t1 इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, तो दूसरा एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, तो T2 इक्वल टू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g, तो दिस इज 2u cos ऑफ थीटा बाय g। तो T1 इंटू T2 विल बी 2u साइन थीटा बाय g इंटू 2u cos थीटा बाय g। क्लियर? यस, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दिस इज ऑलरेडी डन। अब हियर इफ यू रिमेंबर, ये है आपका ui, ये है आपका ux, तो ये 2ui 2ux अपॉन g और g स्क्वायर। गुड, तो हियर यू विल गेट t1 इंटू t2 इक्वल टू, याद रखो 2ux ui बाय g इज r, करेक्ट, 2ux ui by g is r, तो ये आ गया आपके पास 2r by g, g कांस्टेंट, तो t1 इंटू t2 इज प्रोपोर्शनल टू r। ये तो हमने पहले ही कर लिया था व्हेन डूइंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, डोंट वरी, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। सो अ पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u at angle alpha with the horizontal, another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha with the vertical। good, मतलब ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल घुमा फिरा के बता रहे हैं। कैसे? a particle is thrown with velocity u at an angle alpha with horizontal, मतलब पहला जो पार्टिकल है उसका एंगल अल्फा है विथ हॉरिजॉन्टल, दूसरा जो पार्टिकल है उसका सेम वेलोसिटी है, दूसरा भी u पे, पहला भी u दूसरा भी u, लेकिन दूसरा जो पार्टिकल है उसका एंगल अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल का कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, मतलब दोनों कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो उन्होंने आपको पूछा रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अभी अभी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया है। अगर आपको याद होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आता है tan अल्फा, नहीं याद होगा तो डोंट वरी, यू हैव टाइम ऑफ फ्लाइट हियर t1 एज 2ux बाय uy बाय g, है ना? या डायरेक्टली भी डिवाइड कर दिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t1 इज 2u sin थीटा बाय g, दिस इज 2u cos थीटा बाय g, कैंसल 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 कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan, सिर्फ यहाँ पे थीटा को उन्होंने बोला है अल्फा, तो यू हैव sin अल्फा बाय cos अल्फा दैट इज tan अल्फा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये दोनों क्वेश्चंस वेर connected, so that's it for today।